Okay, so today now we'll be discussing the miscellaneous of vectors, right? So we did vectors before, and there were some questions that were left we couldn't take up due to paucity of the time. Now we'll try to make up for that, and we'll try to do some miscellaneous question. Though we covered some in that, the questions which were left I'll try to cover up in this. And just for a reminder, as the time permits, I'll show you the questions which are important, which we did as miscellaneous during that time, right? So let's go on and see this question. Like, this question says, if A is any vector in the space, show that vector A is equal to. So it is basically trying to express a given vector in terms of dot product, A dot I into I, and so on. So whenever such questions are asked, you will see they can be asked some cross form or dot form. You just assume A to be something, right? So what we can assume, say A is, so let vector A be equal to xi plus yj plus zk. This is what I have assumed. Now I'll consider RHS, because LHS तो मैंने ये लाना है. क्या लाना है? I have to get it कि ये जो RHS की वैल्यू है वो यही आ जाए. क्या आ जाए? xi plus yj plus zk. So let's consider RHS. So considering RHS, we are trying to consider the expression on right hand side. So considering RHS, that is what A dot I plus it's A dot I into vector I plus A dot j into vector j and A dot k into vector k. So this is what I am considering. Now guys, I'll show you separately what does A dot I reduce to, क्योंकि अगर आप A dot I को समझ में आया क्या होगा, तो A dot j भी हम लिख देंगे. और ये so A वेक्टर क्या है बच्चे? A is xi plus yj plus zk, and you are taking dot product with I. Now you know that when we take dot product with I, j dot I and k dot I are going to be 0, because the dot product of two perpendicular vector is 0. So the answer would be x. Answer would be x. Why? I dot I is equal to 1. J dot I is equal to k dot I is equal to 0. So the answer is x. So A dot j would similarly be, now I hope you can guess it out. Ki what should be that? Yes, it should be simply equal to y. The same reason, because this product would be 0 and this also would be 0. So ultimately j dot j बचेगा, and A dot k आपको समझ में आएगा कि वो खाली z के बराबर है, will be equal to z. So therefore now I am coming to this expression. मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं A dot I के जगह x, तो क्या बचा? xi plus yj plus zk, and this is equal to vector A. So what I have substituted? A dot I का वैल्यू देखो, A dot I का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे? A dot I का वैल्यू x आ जाएगा. एक i तो बाहर मल्टीप्लाइड है, और A dot j के जगह आप y लगा दोगे, A dot k के जगह आप z लगा दोगे. So here is the answer, xi plus yj plus zk is equal to ये बचा. So that is nothing but A. So this is the next question, which is looks similar, and obviously the approach again would be similar for us. Now it says that you have to prove the magnitude. So again we can consider vector A equal to xi plus yj plus zk. ठीक है, तो हम वेक्टर A को let vector A be equal to xi plus yj plus zk, ये आप ले लेंगे. ठीक है बच्चे, you will take this as this. Now A cross I, there are two methods. Either you use determinant, that's up to you, or you don't want to use determinant, you can directly find it. So A cross I would be equal to xi plus yj plus zk cross I. Are you getting it? You will get cross I. So what is it going to be like, guys? X
आई क्रॉस आई प्लस वाई, स्केलर बाहर रहता है, जे क्रॉस आई प्लस जेड के क्रॉस आई, ये रहता है. नाउ यू नो आई क्रॉस आई इज गोइंग टू बी 0, राइट. नाउ एक्स आई ये, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा. ना आपको आई जे के, देखो मैं इधर लिख रहा हूं आई जे के को साइक्लिक ऑर्डर में घुमाना है, तो j के बाद k के, तो j क्रॉस i विल बी इक्वल टू व्हाट, सो दिस इज x इंटू 0 प्लस y इंटू j क्रॉस i, तो j क्रॉस i उल्टा घुमाओगे तो माइनस k आएगा, प्लस z k क्रॉस i, सीधा सीधा घुमा रहे हो j आ जाएगा. सो ये आपका माइनस k y इंटू के कैप प्लस z इंटू जेड कैप, ये आ जाएगा. अब मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में तो मैग्नीट्यूड चाहिए, तो वो क्या होगा, माइनस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, सो दैट इज अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. तो जब हम क्रॉस आई के साथ ले रहे हैं बच्चे, एक्स का कोई कंपोनेंट उसके मैग्नीट्यूड में नहीं आया. आपको समझ में आ गया इतनी बात कि देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ एक्स दैट विल गो ऑफ. सिमिलरली आई होप आई कैन राइट ए क्रॉस जे, जब मैं मैग्नीट्यूड और उसका स्क्वायर करूंगा तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा, ठीक है ना. जे का कंपोनेंट जो वाई वाला है वो नहीं आएगा. एंड मॉड ऑफ ए क्रॉस के जब मैं करूंगा बच्चे और उसका स्क्वायर करूंगा तो उसमें वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट. नाउ लेट अस पुट द वैल्यूज. तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम लेंगे, इसकी जो मॉड ऑफ ए क्रॉस आई की वैल्यू आप देख रहे हैं, मॉड ऑफ ए क्रॉस आई की वैल्यू जो आएगी बच्चे वो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगी. ए क्रॉस जे की जो वैल्यू आएगी वो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगी, और वहां पर आएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. के वाला कंपोनेंट नहीं आएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा. So what are you going to get? 2 times x square plus y square plus z square. जो आपको पता है 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ. और ये क्या होता है आपको पता है, अगर a आपने एक्स आई प्लस वाई जे लिया है तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a और उसका स्क्वायर, एंड हेंस इट इज प्रूव्ड. तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया. So this is the next question which is there. Maybe I'll try to do little more enlargement for this, right guys? Okay, and this is there, and I hope now it's visible. Question visible है, दिख तो रहा है. 6i के बाद माइनस 3j है, ठीक है. 6i माइनस 3j, मैं इसको और थोड़ा सा कर देता हूँ. Fine guys, now it's perfect, right? So decompose the vector into vectors which are parallel and perpendicular to this. पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ठीक से समझ लो. डिकम्पोज, तुम्हें पता है ना हम बॉडी डिकम्पोज करते हैं तो कहते हैं कि इस वेक्टर के टुकड़े करो 2 वेक्टर्स में. कैसे वेक्टर्स? विच आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू आई प्लस जे प्लस के. तो जैसे हम एक वेक्टर है, सुन लो पहले, एक वेक्टर है, सुनो इधर. तो अभी एग्जैक्टली मैं ऐसे नहीं, पहले मतलब समझाऊं. जैसे ये एक वेक्टर है कोई भी. नाउ अगर मैं इसको चाहूं तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, राइट. फॉर एग्जांपल लाइक दिस. सो इट इज सम ऑफ 2 वेक्टर्स. आप देखो LHS और RHS को आप ऐड करोगे तो सेम चीज आ जाएगी. LHS को मैंने स्प्लिट किया, लेकिन अब वो स्प्लिटिंग कैसे चाहता है वो देखो. वो स्प्लिटिंग चाहता है किसकी? 6i माइनस 3j माइनस 6k को ऐसे लिखो, विच आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू i प्लस j प्लस k. तो मतलब सारी कहानी i प्लस j प्लस k के ऊपर आ गई. इसको तो मैं हटा देता हूं, आपको पहले डिकम्पोज का मतलब समझा रहा था. अब हमको वेक्टर जो लिखना है 6i, इसको और थोड़ा लेफ्ट ले लेते हैं, माइनस 3j माइनस 6k, एकदम ठीक हो गया. पैरेलल टू i प्लस जे प्लस के. अगर कोई वेक्टर किसी वेक्टर के पैरेलल है, मुझे एक वेक्टर चाहिए और वो किसके पैरेलल है? i प्लस जे प्लस के.
तो बेटा कुछ कांस्टेंट टाइम्स आ जाता है, पहले ये समझ में आया। जो वेक्टर, सुन लो मैं फिर से और दिखा देता हूं, वेक्टर, सुन लो बेटा, वेक्टर पैरेलल टू, देखो मैं आपको बता रहा हूं, आई प्लस जे प्लस के, समझो बेटा, इसके जो वेक्टर पैरेलल होगा, अगर कोई वेक्टर ए है और बी है, दोनों पैरेलल है, तो एक वेक्टर दूसरे के कांस्टेंट टाइम्स हो जाता है। आई होप इसमें किसी को अब डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। सो दिस इज देयर, राइट। सो 6i माइनस 3j, एक तो ये वेक्टर हो गया, इसको डिका एंड परपेंडिकुलर टू। नाउ गाइस, वेक्टर परपेंडिकुलर टू i प्लस जे प्लस के, बी व्हाट, कोई भी एक वेक्टर ले लो, कोई भी एक वेक्टर ले लो जो इसके परपेंडिकुलर है, बी इक्वल टू बी सम कोई नाम दे देते हैं, बी सम वेक्टर ए इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, तो हमने कहा कि ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, तो इसको मैं यहां पे लेके आ रहा हूं, मैं यहां पे इसको वेक्टर ए लिख दिया। तो अब ये जो वेक्टर है दो पार्ट्स में स्प्लिट हुआ, एक पहला पार्ट पैरेलल है और दूसरा परपेंडिकुलर है। कोई डाउट गाइस? हाँ, 6i माइनस 3j माइनस 6k, समझ में आया बच्चा, इज इक्वल टू लैम्डा आई हो जाएगा प्लस लैम्डा जे हो जाएगा, एकदम ठीक, लैम्डा के हो जाएगा, और एक्स आई प्लस वाई जे है ना बच्चे, प्लस जेड के हो जाएगा, एकदम ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसका। अब देखो बच्चा, 6i माइनस 3j माइनस 6k, ध्यान से देखो, i कॉमन ले रहा हूं गाइज, लैम्डा प्लस एक्स आ जाएगा, j कॉमन ले रहा हूं गाइज, लैम्डा प्लस y आ जाएगा, और k कैप कॉमन ले रहा हूं गाइज, लैम्डा प्लस z आ जाएगा। ये भी सबको समझ में आ गया होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं की अभी तक। दोनों तरफ इक्वेट कर दो कोएफिशिएंट्स, तो दोनों तरफ इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग, देखो क्या आता है, ध्यान से देखना, 6 इज इक्वल टू लैम्डा प्लस एक्स, सबको समझ आ जाएगा, माइनस 3 इज इक्वल टू लैम्डा प्लस वाई, माइनस 6 इज इक्वल टू लैम्डा प्लस जेड। आई होप सबको ये समझ आ गया होगा मेरे बच्चों। मुझे अब लैम्डा मिल जाए तो मेरे बल्ले बल्ले हो जाए। क्यों बल्ले बल्ले हो जाए अभी आपको बताते हैं। लैम्डा मिल गया, अगर लैम्डा की वैल्यू मैं निकाल लूं यहां तो x आ जाएगा, अगर लैम्डा की वैल्यू पता है तो y भी आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू पता है z भी आ जाएगा। लेकिन अब कैसे आएगा, अब आप देखो यहां पर ये कॉन्सेप्ट देखो, इसकी अभी मैंने कंडीशन नहीं लगाई, वेक्टर परपेंडिकुलर टू i प्लस जे प्लस के, कैन आई राइट a डॉट i प्लस, ये अनवांटेड क्या आ गया, i प्लस जे प्लस के शुड बी 0। क्या आप इस बात से एग्री करते हो? देखो मैं इधर रीजन भी लिख देता हूं, वेक्टर ए परपेंडिकुलर है i प्लस जे प्लस के। सबको समझ आ गया मेरे बच्चों, सबको समझ आ गया। तो a की वैल्यू क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। हाँ आंसर्स भी आने लग गए कुछ के, बहुत बढ़िया, तुम तो कमाल कर दोगे यार। वेक्टर्स, वेक्टर्स कुछ नहीं है यार, वेक्टर 3D तो सबसे आसान है ना। एक्स आई डॉट दिस, तो एक्स आ जाएगा बाकी 0, y आ जाएगा, लो जी बल्ले बल्ले हो गई, x प्लस वाई प्लस जेड 0 आ गया। ओ हो, मेरा काम तो बहुत आसान हो गया, वेरी इजी माई वर्क डन। वाई, जो लोग यहाँ देख पा रहे हैं 1 2 3 को, मेरा वर्क बहुत इजी क्यों हो गया, क्यों बल्ले बल्ले हो गई, तीनों को ऐड कर दो, 1 प्लस 2 प्लस 3 को ऐड कर दो, बस काम खत्म। ऐड करो गाइस, 6 माइनस 3 और ये माइनस 3 आ जाएगा, 3 लैम्डा प्लस क्या आएगा, ये इसीलिए कह रहा था, ये देखो आ गया ना, और उसकी वैल्यू 0 है, तो माइनस 3, उसको वर्किंग नोट दिखाएंगे आप तभी आंसर आएगा। तो माइनस 3 इज इक्वल टू 3 लैम्डा, लैम्डा बच्चा इज -1, लैम्डा इज -1। सो देयरफॉर x इज 7, क्यों 7,
भाई यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू -1 डाल दोगे तो x7 आ जाएगा, और -y कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और z कितनी आ जाएगी, -5 आ गया। सो देयरफॉर ये भी आ गया। नाउ बल्ले बल्ले वेक्टर जो हमको एक्सप्रेस करना है वो क्या आएगा, 6i -3j -6k क्या था, इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स i प्लस जे प्लस के था, प्लस कोई वेक्टर a था। तो यानी कि 6i -3j को दो पार्ट में तोड़ना है। आंसर क्या होगा, लैम्डा इंटू आई प्लस जे प्लस के, ठीक है ना बच्चे। सिंप्लीफाई मत करने लग जाना राइट को, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो RHS मेरा आंसर है। लैम्डा कितना आया, -1, ये एक पार्ट हो गया। प्लीज डोंट सिंप्लीफाई इट राइट को, ये पहला पार्ट पैरेलल वाला। x कितना आया है, 7, तो 7 माइनस, एक मिनट सॉरी गाइस, 7i -2j -5k, ये दूसरा पार्ट। ये पार्ट कौन सा है, पैरेलल वाला, इसको डिकम्पोज कर दिया। एक पार्ट पैरेलल है और एक परपेंडिकुलर। राइट को ऐड करोगे तो वही आएगा जो लेफ्ट में है। क्रॉस चेक करके देखना है, देख लो, कई बार कैलकुलेशन एरर हो और तुम्हारे को आंसर मैच करना है तो मैच करके देखो। राइट को जब मैं ऐड करके फाइनली देखो तो LHS आना चाहिए। So this question is the favorite question of examiners. It's a question from NCERT, and it's quite often asked in examination and has been asked in past by boards also, right? So let's understand what the question says. Again, it's similar to the previous question. If with reference to right-handed, vector A and vector B is given, express one vector in form of some beta 1 plus beta 2. And what is beta 1, parallel to A, and what is beta 2, perpendicular to A? Okay. So beta is equal to, say, parallel to A. Beta 1 is parallel to A. तो जो beta 1 होगा वो A के parallel है। तो मैं lambda times 3i minus j लिख सकता हूं, है ना गाइस, beta 1 को, प्लस beta 2 is perpendicular to A. Beta 2 is perpendicular to A. तो मतलब कि beta 2 डॉट वो 0 आ जाएगा, लेकिन यहां पंगा गया ना वो x पर। चलिए, beta 2 is perpendicular to A, तो beta 2 जो है, we can also say कि अगर ये beta is equal to beta 1 plus beta 2 है, तो beta 2 को मैं बीटा माइनस बीटा 1 भी लिख सकता हूं। अब देखो, बीटा माइनस बीटा 1 भी लिख सकते हैं हम। चलो पहले तो मैं आपको सीधा बीटा 2 ऐसे लिख के दिखा देता हूं, सम xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये हमारे प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे, फिर मैं दूसरा मेथड डिस्कस करूंगा। एज ऑफ नाउ ये हो जाता है, राइट। नाउ व्हाट इज बीटा 2i प्लस जे माइनस 3k, डिकम्पोज कर रहे हैं। इज इक्वल टू 3 लैम्डा आई, है ना बच्चों, 3 लैम्डा आई माइनस लैम्डा जे प्लस एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, कुछ ऐसा ऐसा आ रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं। सो 2i प्लस जे माइनस 3k विल बी बराबर, आई कॉमन ले लेता हूं गाइस, 3 लैम्डा प्लस एक्स, j कॉमन ले लेता हूं गाइस, y माइनस लैम्डा एंड z k का तो टर्म है ही नहीं, है ना बच्चे, तो हमारे पास k का टर्म नहीं है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है। तो अब आप देखो बच्चे, इक्वेटिंग, जब मैं इक्वेट करूंगा तो क्या आएगा, आप समझो बात को, इक्वेटिंग, है ना, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ 2 इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस एक्स आ जाएगा, एकदम ठीक है। 1 इज इक्वल टू वाई माइनस लैम्डा आ जाएगा, तो मैं इसको माइनस लैम्डा प्लस वाई लिखूंगा। और भाई z तो -3 आ रहा है क्या, है ना, हमारे पास कुछ है ही नहीं, टर्म ही नहीं है जो उसको इक्वेट करे, है ना। तो हमारा z इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू
और -3 इज इक्वल टू z आ जाएगा। एक बार चेक कर लो, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। सो ये इतना स्टोरी आ गया, ठीक है। और इसी के साथ हमारे पास ऐड भी कर देंगे, तो हाँ ऐड करेंगे, देखता हूं क्या आता है। 3 0 इज इक्वल टू 2 लैम्डा, एकदम ठीक, प्लस x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, एकदम ठीक। ये 1 2 और मैं 3 ले लेता हूं और इनको ऐड करके देख लेते हैं, एकदम ठीक। अब हमारे पास कंडीशन क्या है कि जो बीटा 2 है, बीटा 2 जो है इस परपेंडिकुलर टू वेक्टर है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे कि बीटा 2 डॉट ए करेंगे तो 0 आ जाना चाहिए, बीटा 2 डॉट ए 0 आ जाना चाहिए। तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, है ना, डॉट 3i माइनस जे शुड बी 0, ये बता रहा है, ठीक है जी। तो 3x आ गया माइनस वाई आ गया, z तो खत्म ही है, 0 हो जाएगा। 3x माइनस वाई 0 आ जाएगा, ठीक है, एकदम ठीक है। अब यहां से इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अब वो हम देख लेते हैं। 0 इज इक्वल टू ये 2 लैम्डा प्लस एक्स प्लस वाई, है ना, ये जो z है ये तो -3 है कि नहीं है। तो 3 इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस एक्स प्लस वाई आ जाएगा ना, एक ये रिलेशन 2 लैम्डा प्लस एक्स प्लस वाई। तो यहां से हमारे पास जो रिलेशन आ गया है वो ये है कि 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। और ये अब एक बार अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो ये y तो कट जाएगा, x लैम्डा के टर्म में आके आंसर आ जाएगा, है ना। हमको जो वैल्यू निकालनी है वो लैम्डा निकालना है, x y z ये तो इजीली फिर आ ही जाएंगे। सो 3x माइनस वाई इज 0, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग 1 और 2 लेके इजीली सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है और लैम्डा हाफ आ गया। और बाकी इक्वेशन 1 और 2 y के जगह 3x रख दो, हमको ऐड करने की यहाँ जरूरत भी नहीं है, इजीली ऐसे ही सॉल्व हो रहा है। इवन वी डोंट नीड टू ऐड देम, इसको ऐड करके हमारा काम इधर और लंबा ही हो जाएगा। सीधा हम 1 और 2 को लेके इजी कर दें। लैम्डा हाफ हो गया और फिर एक्स वाई जेड। सो x कितना आ जाएगा, 2 माइनस 3 लैम्डा x है, so 2 minus 3 lambda is x, yes, so 2 minus 3 by 2 is equal to x आ जाएगा, हाफ आ जाएगा x, और y तो 3x है तो दैट इज 3 by 2 हो जाएगा, और z हमारा -3 है। तो बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, लैम्डा टाइम्स लैम्डा कितना आया, हाफ इंटू 3i माइनस जे, वैल्यू पुट कर दी बीटा में, प्लस क्या x कितना है, हाफ i, y कितना है 3 by 2j, और z क्या है -3k इज इक्वल टू दिस। सो दिस इज व्हाट इज वन वे, ठीक है। इसको दूसरा वे ये है कि आप बीटा 2 को x y z के टर्म में लो ही मत, यू कैन टेक बीटा 2, आई टेल यू 1 मिनट, ये कंप्लीट हो ही गया होगा, आई टेल यू अल्टरनेटिव वे ऑल्सो, इसका अल्टरनेटिव वे भी हम कर लेते हैं। सो दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एट टाइम्स जहां पे कैलकुलेशन है। अब इसी क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, I'll just copy the same question and do it alternatively. So see what we can do इस क्वेश्चन में alternative method। alternative देखो आप क्या कर सकते हो, बीटा 2i, हमारे को क्वेश्चन दिया है कि बीटा इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे देखो बीटा 1 जो है वो मैंने लिखा लैम्डा टाइम से, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो पैरेलल है, ये रिलेशन ले लिया। तो बीटा कितना है, बीटा कितना है भाई, बीटा दिया हुआ है ना 2i, हाँ बीटा जो है, अब देखो हमारे को बीटा 2 इधर से भी हम अज्यूम कर सकते हैं, 2i प्लस जे माइनस 3k इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 3i माइनस जे प्लस बीटा 2, मैंने बीटा 2 ये ले लिया। तो बीटा 2 होना क्या चाहिए, बीटा 1 बीटा माइनस बीटा 1, बीटा माइनस बीटा 1 इज बीटा 2, तो इसको इधर लाओगे 2i प्लस जे माइनस 3k माइनस 3 लैम्डा i माइनस लैम्डा जे इज इक्वल टू बीटा 2।
समझ में आया ये? तो यहां से 2i, i कॉमन, 2 माइनस 3 लैम्डा आ गया, j कॉमन, 1 माइनस लैम्डा आ गया, और -3k, ये बीटा 2 है। समझ में आया? अब लैम्डा कैसे निकलेगा? बीटा 2 जो है इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, सो देयरफॉर बीटा 2 डॉट ए शुड बी 0। अब बीटा 2 है क्या बच्चे तुम्हारा? i इंटू 2 माइनस 3 लैम्डा प्लस j इंटू 1 माइनस लैम्डा -3k, ये है डॉट। अब a क्या है बच्चे? a देखो क्वेश्चन में क्या है? a 3i माइनस j आ गया ना, सीधा सीधा लैम्डा इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करो, i और i का डॉट लोगे तो 3 इंटू 2 माइनस 3 लैम्डा बचेगा, प्लस j और j का डॉट तो -1 माइनस लैम्डा, k तो है ही नहीं, इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज 6 माइनस लाइन -1 प्लस लैम्डा आ रहा है, कितना आ रहा है? 1 माइनस लैम्डा डॉट -1, तो -1 इंटू दिस, तो 6 माइनस 9 लैम्डा -1, ये कैसे गड़बड़ हो रहा है? ये माइनस लैम्डा आना चाहिए ना, हमारा कहीं एरर हुआ है क्या? एक मिनट, हमने लिया 2i प्लस 3j माइनस दिस, तो -3 लैम्डा i प्लस लैम्डा होगा, ये प्लस लैम्डा होगा, यहाँ पे एरर है, लेफ्ट में लाएंगे तो प्लस लैम्डा, ठीक है, गॉट इट, ये प्लस लैम्डा होगा। तो 6 -1 और ये माइनस लैम्डा 0, तो 10 लैम्डा कितना हो गया? 10 लैम्डा इज इक्वल टू 5। देखो लैम्डा वही हाफ आ गया, और जैसे लैम्डा हाफ आया हमारा बीटा अपने आप आ गया, ठीक है ना, हमारा अपने आप आंसर आ गया। तो दिस वे ऑल्सो यू कैन डू दिस क्वेश्चन। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ये भी कर सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। So now this question says if sum of two unit vector is a unit vector, prove that magnitude of their difference is √3। अब ये क्वेश्चन को करने का पर्टिकुलर वे है, बहुत कनेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं ऐसे। अब आप पहले इस क्वेश्चन को देखो, क्या कह रहे हैं? सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, तो सबसे पहले तो यूनिट वेक्टर्स को अज्यूम करने दो मुझे, है ना। गुड, सो लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी be two unit vectors, ठीक है बच्चे, एकदम ठीक। अब if sum of two unit vectors is a unit vector, तो मतलब जो ये वेक्टर a प्लस वेक्टर b है दैट इज सम वेक्टर c, ठीक है ना, एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना। अभी यूनिट वेक्टर देखो, c इज ए यूनिट वेक्टर, वैसे भी हमने टोपी पहना दी उसको तो अंडरस्टूड है। क्या पूछ रहा है? प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। तो टू प्रूव क्या है हमारे को, हमको प्रूव क्या करना है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है बेटा, डिफरेंस इज √3। अब आपको बताएं ये क्वेश्चन किससे है। ये क्वेश्चन जो हम मेथड यूज करेंगे इज ऑलवेज एप्लीकेबल, is always applicable when sum of the magnitude and difference of the magnitude is given. Sum of the magnitude and difference of the magnitude आपको ये हमेशा यूज करना है। देखो बेटा, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर, मॉड जब हम एक्सपैंड करेंगे तो मॉड ए स्क्वायर आएगा, ये मैं आपको मॉड बी स्क्वायर आएगा प्लस, ठीक है ना, जब आप इसका मैग्नीट्यूड की बात करेंगे मॉड ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स क्या आना चाहिए? 2 टाइम्स क्या आना चाहिए बताओ? तो जब हम लोग इसको लिखेंगे तो 2a डॉट बी आता है, यहाँ पे यूनिट है तो मैं यूनिट ये आ जाएगा। आप डिराइव करिए ये वाला एक्सप्रेशन, किसका मैग्नीट्यूड निकालना है? a प्लस बी का, तो a प्लस बी डॉट a प्लस बी लोगे तो आप देखो क्या आएगा, a डॉट a, तो वेक्टर a का स्क्वायर आ जाता है, प्लस b डॉट b जब करोगे तो b का स्क्वायर आ जाता है, और फिर क्या आ जाता है? a डॉट b प्लस b डॉट a। आप इसको एक्सपैंड करोगे तो ऐसे ही आएगा,
तो मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, ये अपने आप बन गया है ना। और a प्लस बी को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉड ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर कहलाता है। तो दैट इज व्हाट यू विल गेट। सो दिस इज वन रिलेशन वी विल गेट। एंड व्हेन यू विल डू a माइनस बी का स्क्वायर बच्चा, यू विल गेट मॉड a का स्क्वायर, ये आना चाहिए। सो नाउ सी व्हाट हैपेंस व्हेन यू ऐड देम। क्यों ऐड कर रहा हूं? क्योंकि सम ऑफ द मैग्नीट्यूड और डिफरेंस ऑफ द मैग्नीट्यूड, आप समझो क्वेश्चन में खाली सम और डिफरेंस की बात हुई है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड ए का स्क्वायर ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। अब आप देखो मॉड ए प्लस बी क्या होगा। ए प्लस बी एक सी कैप दिया है, नाउ ए कैप प्लस बी कैप is equal to some c cap, so which implies mod of, दोनों तरफ mod लूंगा, is equal to 1, यूनिट वेक्टर है। तो अब आप देखो क्वेश्चन में ये है, तो इसकी वैल्यू 1 स्क्वायर, मॉड ए माइनस मॉड बी डिफरेंस का हमें निकालना है, और ए और बी कैसे वेक्टर हैं? यूनिट वेक्टर। देखो इसकी वैल्यू भी 1 और इसकी वैल्यू भी 1, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी कि 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 1, ये 1 राइट में जाएगा, ये वाला 1, तो इज इक्वल टू 3। अब इन्होंने प्लस माइनस आता तो पूछा नहीं है, डिफरेंस अंदर ही आई है, तो मॉड ऑफ ए माइनस बी बेसिकली हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस इज √3। So this is how this question is done. Now see guys, again the question says A and B are unit vectors. So read the first line itself gives you a hint, and they are inclined at an angle theta. Then prove that right side में क्या magnitude of their difference. अब समझ जाओ, अब समझ जाओ। नहीं समझ में आया? चलिए समझाते हैं अब आपको कैसे हम करेंगे। हमको इसकी वैल्यू पता है, अरे यार हमको क्या निकालना है, सॉरी, व्हाट वी आर फाइंडिंग गाइस इज, हमको इसकी वैल्यू निकालनी बहुत ज़रूरी है। और इसका फॉर्मूला जो होता है अभी मैंने आपको लिखवाया, इज दिस प्लस टोपी कैप माइनस 2 और लेट मी सी ए डॉट बी। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। पहले तो फॉर्मूला क्लियर हो गया कि मॉड ए माइनस बी का स्क्वायर ये होता है, ठीक है। अब आप देखो कि मॉड ए माइनस बी का तो वैल्यू निकालनी है, एंगल थीटा भी है, तो देखते हैं मॉड ए इज 1 एंड मॉड बी इज ऑल्सो 1, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आप देखेगा तो a एंड b आर यूनिट वेक्टर्स। तो a और b क्या होंगे मैं नहीं बता सकता यूनिकली, लेकिन हाँ अगर यूनिट वेक्टर है तो उनका मैग्नीट्यूड 1 होगा, मैं ये लिख सकता हूं एकदम ठीक, -2 मॉड ए मॉड बी और कॉस थीटा, क्योंकि थीटा एंगल दिया, a डॉट बी की वैल्यू लगा दी। तो अब देखो गाइस, मॉड ऑफ a माइनस बी का स्क्वायर क्या हुआ, 2 माइनस 2, इसको 1 कर दो, इसको 1 कर दो, 2 माइनस 2 कॉस थीटा हो गया, ये 1 हो जाएगा इंटू 1। तो मॉड ऑफ a माइनस बी का जो बेटा स्क्वायर आएगा वो 2 कॉमन ले लिया, 1 माइनस कॉस थीटा आएगा। शायद ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत याद होगी गाइस, आंसर साइन थीटा बाई 2 है, 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। याद करने का मेथड बताया था ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर, तो इसमें साइन स्क्वायर आएगा, बस कॉस है तो इसीलिए थीटा का आधा हो जाता है। तो अंडर रूट ले लेते हैं, अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 का 2 साइन थीटा बाई 2। तो आई होप यू गॉट द आंसर और समझ भी आ गया, बाई 2 इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2। ठीक है गाइस, दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन इज दैट। कभी कभी कॉस भी निकालने को बोल देते हैं, तब तो हमें इतना मेहनत और नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट यू कैन इजीली डू ऑन योर ओन, वही मॉड ए प्लस बी का स्क्वायर है, तो यहाँ पे सब जगह
सेकेंड पार्ट में अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, मैं अभी बता देता हूँ व्हाट हैपन। सेकेंड पार्ट अगर होगा तो कुछ नहीं होगा, कॉपी किया, हाँ जी पेस्ट हो गया, पेस्ट भी हो गया, बाहर आ जाओ बस। लो जी, तो सेकंड क्वेश्चन जो है बेटा उसमें, जस्ट अ मिनट, दिस इज टू चिपको टाइप्स हो गया ना, सॉरी। पहले मैं इसको ठीक कर दूं, अदरवाइज दिस गोज हियर एंड नाउ कॉपी एंड दिस पेस्ट, आई होप। Okay, need to start, just a minute guys. Okay, so what we'll do in this question is, बस कुछ नहीं करना गाइस, अब प्लस प्लस लगा देता हूँ। इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है, तो इतना तो बनता है, ये प्लस बनता है, ये प्लस बनता है, ये प्लस बनता है, ये प्लस बनता है, ये ओए 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 ओके। So this will be 2 cos square theta by 2. This will become 2 cos square theta by 2. So again a plus 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 plus, so this becomes 2 cos theta by 2. I hope everybody gets the answer. सबको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन कर लो, दिस इज नॉट रॉकेट साइंस, ठीक है गाइस, ऑल गुड। तो ये बस सिंपल सा क्वेश्चन है जो हमने कर लिया। आगे देखते हैं गाइज और कौन सी प्रॉब्लम है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। आई थिंक आई हैव डन ऑल द सब्स्टिट्यूशंस रिक्वायर्ड। ओके, नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज देयर, टू इनइक्वालिटीज व्हिच वी नीड टू प्रूव, राइट। ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, फटाफट देखो इनको करते हैं, एक दो ही बचे हैं बस अब। सो दिस क्वेश्चन, द फर्स्ट पार्ट व्हिच इज अ ट्रायंगल इनइक्वालिटी, लेट्स गो इन अ वेरी सिंपल वे, इसको हम प्रूव कर देते हैं। अब आप ये देखो कि हमको मॉड a प्लस बी लाना है, तो मॉड a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, आपको सबको पता है कि ये मॉड a स्क्वायर के बराबर होगा प्लस मॉड b स्क्वायर के बराबर हो जाना है इसने, और 2a डॉट b हो जाना है। तो मॉड a प्लस बी का जो स्क्वायर है बच्चे, वो आएगा मॉड a स्क्वायर cos थीटा, ये बेसिक है। अब हमको इनइक्वालिटी लानी है, राइट साइड की क्वांटिटी नोट करिए, मॉड ए प्लस मॉड बी, तो उसका भी मैं स्क्वायर निकालूंगा, अभी आपको दिखाता हूं। ऐसे मैं आपको कंपेयर करा रहा हूं। अगर बताओ बेटा मॉड ए प्लस मॉड बी, इसका स्क्वायर निकालना है, मैं आपको समझा रहा हूं क्या होगा। ये डिफरेंट है ऊपर वाले से, ये ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, समझ में आया इसका डिफरेंस, क्योंकि ये दो अलग अलग टर्म है, बात समझो। दिस आर टू डिफरेंट टर्म्स विच आर एडेड एंड विद मॉड इनसाइड, और ऊपर वालों में दो वेक्टर्स एडेड है, इसीलिए वो a डॉट बी आता है। अब आपको ये प्रूव करना है कि ये जो क्वांटिटी है, ये जो भी चीज मैंने किया है, आपको ये प्रूव करना है कि ये क्वांटिटीज एक दूसरे से लेस हैं। अब आप देखो, ध्यान से देखना, 2 मॉड ए, ध्यान से देखना बेटा, मॉड बी इज इक्वल टू 2 मॉड ए मॉड बी। आप कहोगे सर ये क्या बात समझा रहे हो, आज आपको हो क्या गया, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो। तो होते ही एकदम होते हैं जनाब। अब आप इस बात पे गौर फरमाइए, हैव सम, कैन आई राइट लाइक दिस। अब इसमें कुछ लोग घूम जाएंगे। y cos थीटा लेस देन इक्वल टू 1 होता है। तो जब मैं एक क्वांटिटी जो 1 से छोटी है, जो एक क्वांटिटी 1 से छोटी है फॉर ऑल थीटा, उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो वो छोटा होगा या नहीं, बताओ छोटा होगा या नहीं। ये दोनों बराबरी पे थे। अब लेफ्ट में तुमने एक क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जो 1 से छोटा है, तो वो राइट से तो कम हो जाएगा ना, राइट तो वैसे ही है। तो व्हाट आई कैन से, ये एक्सप्रेशन देखो बेटा, ये एक्सप्रेशन इससे हमेशा लेस देन इक्वल टू कब हो जाएगा, जब थीटा 0 है।
अगर थीटा 0 है cos 0 1 हो जाएगा। अब मैं आपको और समझा दूं, 5 इससे लेस देन इक्वल टू या 5 इज इक्वल टू 5, समझ में आया। अब 5 इंटू हाफ विल बी फॉर श्योर लेस देन 5। क्यों ऐसा हुआ अब समझ में आ रहा है? 5 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया? क्वांटिटी जो 1 से छोटी है तो 5 से कम हो जाएगा। तो आपने यहां पे cos थीटा से जब मल्टीप्लाई कर दिया तो अल्टीमेटली 1 से छोटी क्वांटिटी से किया। तो अब देखो, इसको ध्यान से देखो, ये ट्रू हो गया रिलेशन। मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूं आप देखो, ऐड, मैंने ये चीज दोनों तरफ ऐड कर दी, बस बहुत सिंपल सा काम किया मैंने। ये जो एक एक्सप्रेशन बनाया, ऐड कर दिया दोनों तरफ सेम क्वांटिटी। नाइन्थ में कभी यूक्लिड पढ़ा था, इफ इक्वल्स या इफ टू एन इनइक्वालिटी इक्वल्स आर एडेड द इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम। यूक्लिड साहब ने कभी ऐसा कहा था, सो यू मस्ट हैव स्टडीड देयर। सो आई हैव नॉट डन एनीथिंग इन दिस एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन है इसमें मैंने मॉड ए मॉड स्क्वायर ऐड किया। अब तुमने खुद अभी अभी ऊपर बताया, देखो ये क्वांटिटी ये है कि नहीं है जी, है जी, तो कैन वी राइट जी, एकदम ठीक। और ये क्वांटिटी ये है जी, ये देखो, तो लेस देन इक्वल टू क्या आया, मॉड ए प्लस मॉड बी, एकदम ठीक, का होल स्क्वायर। तो इससे इंप्लाई क्या हुआ बच्चा? अब तो इंप्लाई समझ में आ गया ना कि a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। इसको हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी कहते हैं। सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इक्वालिटी कब आएगा? जब 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 कोलिनियर होंगे। तो अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊं, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है ना, यहां से लेके ऐसे ट्राइंगल गया, वेक्टर ए, तो ये साइड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। सबको समझ में आ गया? अब जो AC है मैग्नीट्यूड में विल बी लेस देन, देखो AC विल बी लेस देन AB प्लस BC। बताओ ऐसा होगा या नहीं? ऐसा क्यों होगा बच्चे? सम ऑफ टू साइड्स इज लेस देन द थर्ड साइड, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो थर्ड साइड इज छोटा, तो मैं एक बात तो पक्की कह सकता हूं कि ये जो मैग्नीट्यूड है ऐसे ये होगा। बोलो, एक पार्ट तो इनइक्वालिटी का यही है, होगा कि नहीं? बोलो, होगा ना? इफ AB BC AC आर कोलिनियर, आर क्या बेटा? कोलिनियर। वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC इक्वल टू वेक्टर AC आया, कोलिनियर है। क्या है? कोलिनियर। AB प्लस BC इज इक्वल टू कोलिनियर। तो कोलिनियर होंगे तो सम ऑफ द मैग्नीट्यूड, तो हम सिंपल क्या लिख सकते हैं? AB प्लस BC का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू AC। तो मतलब AB का मैग्नीट्यूड हुआ मॉड A प्लस मॉड B और AC का मैग्नीट्यूड होगा ये इक्वालिटी। तो दोनों को क्लब करो, इसको और इसको क्लब करोगे तो वो आंसर आ जाएगा, राइट? सो दैट इज व्हाट इट इज प्रूव्ड। आई होप इट इज क्लियर। नाउ द सेकेंड इनइक्वालिटी इज वेरी इजी। इसको तो ऐसे ही कर देंगे, देख लो आप, a डॉट बी का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ये। अगर तुम मान के भी चलोगे तो एक बहुत ऑब्वियस रीजन आ जाएगा। देखो a डॉट बी क्या होता है? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, इसका स्क्वायर ले लो, इज लेस देन मॉड ए। मान लो कि ये ट्रू है, मान लो कि ये ट्रू है, लेट, तो मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज लेस देन दिस। ये आ जाए, क्या कट जाएगा बच्चे? ये और ये खल्लास। कॉस स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 1 ऑलवेज ट्रू होगा। स्क्वायर ऑफ ए नंबर जो -1 और 1 के बीच है, वो हमेशा उसका स्क्वायर करोगे तो 1 या उससे छोटा आएगा, ऑलवेज ट्रू। तो तुम्हारे पास इसको ट्रू माना एक ऐसा रिलेशन आ गया जो तुम्हें पता है ट्रू है, ऑलवेज ट्रू। सो देयरफॉर वी कैन से कि a डॉट बी बाबा का स्क्वायर इज लेस देन
मॉड ए का स्क्वायर एंड मॉड बी का स्क्वायर। गॉट इट गाइस, गॉट इट। चलिए, सो नाउ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी, ए नॉट इक्वल टू शो दैट। ये बच्चों वाला क्वेश्चन है यार, ये तो तुम्हारे लेवल का है ही नहीं, तेरे वर्ग का नहीं बेटे, इस क्वेश्चन का लेवल ही नहीं तेरे वर्ग का। चलो, ओहो क्या दे दिया मैंने भी ये लॉलीपॉप। ये तो एक नंबर का क्वेश्चन है गाइस, एक नंबर का। किल कर दो गाइस, किल किल। ये आ गया, ए कॉमन ले लिया, ये आ गया। नाउ ए नॉट इक्वल टू 0 दिया है, एकदम ठीक। बी नॉट इक्वल टू सी दिया है वेक्टर, इसका मतलब b माइनस सी वेक्टर 0 नहीं है। अब आप देखो सॉरी, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 और उनमें से कोई भी नल वेक्टर नहीं है। बात को समझो कि अगर a 0 होगा तो भी हो जाएगा, b 0 है तब भी हो जाएगा। तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है और कोई भी 0 नहीं। सो देयरफॉर वेक्टर a इज कोलिनियर और पैरेलल, एक ही चीज होती है, टू b माइनस सी। ठीक है, तो वी कैन से दैट वेक्टर b माइनस सी, कोई भी एक वेक्टर दूसरे के t टाइम्स होगा। उन्होंने t लिखा है तो दोनों वेक्टर पैरेलल कोलिनियर है, तो ऐसे होगा। तो वेक्टर b विल बी इक्वल टू वेक्टर c प्लस t। क्यूट सा क्वेश्चन, क्यूट सा प्रूफ, एंड हेंस द रिजल्ट। Now watch the question carefully, asked in board। और क्यों बच्चे इसको नहीं कर पाते वो भी है क्योंकि आप वेक्टर्स की नॉलेज अच्छी रखो तो है। ध्यान से देखो, a क्रॉस b इज इक्वल टू c दिया है, ध्यान से समझो। सो दिस इंप्लाइज वेक्टर c जो भी है इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर a एंड वेक्टर b। समझ में आया ना? जब क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालते हैं तो हम कहते हैं एक नया वेक्टर आया जो दोनों के परपेंडिकुलर है, जिनसे आया। अब आप देखो ध्यान से, b क्रॉस c इज इक्वल टू a। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज व्हाट, वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, वेक्टर b एंड वेक्टर c। समझ में आया? अब यहां से आप देखो, c परपेंडिकुलर टू a है और C परपेंडिकुलर टू B है। समझ में आ गया? और यहां से A परपेंडिकुलर टू B हो गया और A परपेंडिकुलर टू C, वो तो ऊपर भी था। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज, ठीक है ना, दिस इंप्लाइज ये 1 एंड 2 है ना। तो इनसे क्या इंप्लीकेशन आ रहा है वो देखो, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आ रहा है? समझ में आया? कुछ नहीं आया, कोई बात नहीं। From 1 and 2, vector A, B, C are mutually perpendicular। ये सारे mutually perpendicular हैं, A is perpendicular। ठीक है, now देखो अब ध्यान से, A क्रॉस B C दिया हुआ है, तो मॉड ऑफ A क्रॉस B, इसका मैग्नीट्यूड अगर लूंगा तो मॉड C हो जाएगा, हो जाएगा ना? एकदम ठीक। तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, मॉड ए मॉड बी साइन 90। समझ में आया 90 डिग्री क्यों लिया है? इज इक्वल टू मॉड सी। वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी, तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री। तो मॉड ए मॉड बी इज इक्वल टू मॉड सी। एक रिलेशन मैंने निकाल दिया। एक रिलेशन और आएगा, वो हमें आंसर दे देगा, क्या है वो भी देख लेते हैं। मॉड बी क्रॉस सी विल बी इक्वल टू मॉड ए। तो मॉड बी मॉड सी साइन 90, क्योंकि बी और सी भी परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, वेक्टर बी एंड सी भी क्या है, परपेंडिकुलर। तो मॉड बी एंड मॉड सी एंड इज इक्वल टू मॉड ए। ये हमारा फोर्थ रिलेशन। अब क्वेश्चन क्या है, मॉड बी 1 होना चाहिए, मॉड सी इक्वल टू मॉड ए। तो अगर मॉड सी और मॉड ए इक्वल है तो मॉड बी 1 हो जाएगा, ये तो है ही है।
क्या करें इसको, डिवाइड कर दो, हाँ डिवाइड कर दो, कट जाएंगे। किसके बाई किसके, कोई भी बाई कोई कर दो, 3/4 कर दो, या सब्सटीट्यूट कर दो वैल्यूज, कुछ भी हो जाएगा। मॉड सी अपॉन मॉड ए मॉड बी, RHS क्या आएगा, मॉड सी अपॉन मॉड ए आ जाएगा। क्या कटा, ये और ये कट गया, क्या आ रहा है ये, क्या किया मैंने, 3/4 उल्टा कर दिया, लिखा 3/4, किया कुछ और बाई और। 3 में तो मॉड ए और मॉड बी है, इसको डिवाइड करना है मॉड बी और मॉड सी से, इज इक्वल टू मॉड सी और मॉड ए, ये हो जाएगा एकदम ठीक। अब ठीक है, ये कट गया, मॉड ए का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड सी का स्क्वायर, तो इसका मतलब मॉड ए इज इक्वल टू, हाँ जी बच्चे क्या, मॉड सी, एकदम ठीक। फ्रॉम 4 कोई भी ले लो, 4 या 3, फ्रॉम 4 मॉड बी मॉड सी इज इक्वल टू क्या है, मॉड ए, है ना, तो बस इक्वल कर दो यार, मॉड बी विल बी इक्वल टू 1, मॉड सी इज इक्वल टू मॉड ए, तो ये बेसिकली कैंसल आउट हो जाएंगे और आपका आंसर आ गया। सो नाउ विल कम टू द लास्ट क्वेश्चन। Okay, now this is a good question. Now, why is it a good question? Because it involves very conceptual. It doesn't have much working, right? So, a well-framed question by board. Now, A dot B 0. तो A is perpendicular to B. A एक वेक्टर है जो B के परपेंडिकुलर है, नोट करना बच्चों। A dot C 0. तो A परपेंडिकुलर टू C. अब बात समझो, A एक वेक्टर है जो B के भी परपेंडिकुलर है, A एक वेक्टर है जो C के भी परपेंडिकुलर है, समझ में आया? आपको एक और पता है ऐसा वेक्टर हम निकाल सकते हैं जो दोनों के परपेंडिकुलर हो। नाउ B क्रॉस C, समझो बच्चों, नाउ B क्रॉस C इज ऑल्सो ए वेक्टर, समझो बात को, परपेंडिकुलर टू बोथ B एंड C। समझ में आया कि नहीं? अगर मैं B क्रॉस C निकालूंगा तो कोई भी एक वेक्टर D आएगा, कोई भी एक वेक्टर D आएगा जो कि B के भी परपेंडिकुलर होगा और C के भी। अब A भी ऐसा वेक्टर है, A भी ऐसा वेक्टर है, तो क्या हम कह सकते हैं कि A, सो देयरफॉर ऐसा हम कह सकते हैं कि वेक्टर A इज पैरेलल टू B क्रॉस C। अब बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि भाई ये अगर A और B हैं तो आपको कोई भी एक ऐसा वेक्टर मिल रहा है जो दोनों के परपेंडिकुलर है, इन दोनों के प्लेन के, तो ऐसे जो वेक्टर होगा और भी अगर वेक्टर A और B के ही परपेंडिकुलर है तो वो ऑब्वियसली इस C के पैरेलल आ जाएगा। तो इस पैरेलल टू B क्रॉस C, समझ में आया? इस पैरेलल टू B क्रॉस C आ जाएगा। तो वेक्टर A विल बी इक्वल टू सम लैम्डा टाइम्स B क्रॉस C, क्योंकि A और B क्रॉस C पैरेलल है, ये है। और एंगल बिटवीन B एंड C π/6 दिया है, तो क्या मैं लिख सकता हूं, मॉड ऑफ A विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ दिस। मॉड क्यों ले लिया, मॉड क्यों ले लिया, क्योंकि मेरे को ये लैम्डा निकालना है ना, और उसके लिए हमें मॉड लेना पड़ेगा, ठीक है। ए बी सी यूनिट वेक्टर है तो इसीलिए मॉड लेके हमारा काम आसान हो गया। आपको पता है ना वेक्टर्स में ये लॉ कि भाई अगर हम दो वेक्टर्स का मॉड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो लैम्डा अगर कांस्टेंट है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मॉड ए, ये 1 हो गया, चलो इसको 1 लिख दिया, इज इक्वल टू मॉड लैम्डा, ये 1 लिख दिया, मॉड ए, मॉड बी मॉड सी साइन कितना एंगल भाई π/6। तो 1 इज इक्वल टू मॉड लैम्डा इंटू 1 इंटू 1 इंटू हाफ, क्योंकि ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। इसकी भी वैल्यू एक साथ ही लगाता हूं ना, मेरे को रीजन दो बार नहीं लिखना पड़ेगा, ये 1, तो यहां पे रीजन दे दिया ए बी सी आर
यूनिट वेक्टर्स। समझ में आ गया? तो यहां से मॉड ऑफ लैम्डा कितना आ जाएगा? 2। तो अंदर ये जो कांस्टेंट है इसका मैग्नीट्यूड 2 है, तो इसका मतलब लैम्डा कैन बी प्लस माइनस 2। ठीक है, लैम्डा इज प्लस माइनस 2। तो हमको क्या प्रूव करना है कि वेक्टर ए क्या है? लैम्डा टाइम्स बी क्रॉस सी, है कि नहीं? एकदम है। तो हो तो गया है ना, लैम्डा आ गया प्लस माइनस 2, तो प्लस माइनस 2 इंटू बी क्रॉस सी आ गया। आया समझ में? तो हमारे पास जो एक वेक्टर था ऐसा, वो ये था। और आपको शॉर्टकट बताएं, ए जो वेक्टर है, ठीक है ना, इज परपेंडिकुलर, प्लीज देखो यहां, टू बोथ बी एंड सी। समझो आप, मैंने आपको वेक्टर्स में पढ़ाया था कि एक वेक्टर निकालना हो जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो वो वेक्टर होता है प्लस माइनस बी क्रॉस सी। एक स्टेप का सोल्यूशन दे रहा हूं अपॉन दिस। याद करो, हाउ डू यू फाइंड ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड सी? हजारों क्वेश्चन किए होंगे, याद करो। हाउ डू यू फाइंड ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स? उसका क्रॉस प्रोडक्ट अपॉन दिस। व्हाई आई एम यूजिंग प्लस माइनस? क्योंकि ऐसे दो वेक्टर होते हैं। ठीक है, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो अब आप देखो, ए कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस बी क्रॉस सी अपॉन मॉड बी मॉड सी। ठीक है ना, साइन कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, तो ए कैप जो वेक्टर चाहिए प्लस माइनस बी क्रॉस सी, ये 1 हो गया इंटू 1 हो गया इंटू हाफ, तो ये आ गया प्लस माइनस 2 इंटू बी क्रॉस। ठीक है, ए कैप इक्वल टू दिस। ये एकदम आसानी से प्रूव हो गया। यू कैन ऑल्सो यूज दिस। याद है आपको, अगर एक वेक्टर दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है और वो यूनिट वेक्टर है, सो हमने कॉन्सेप्ट किया था क्रॉस प्रोडक्ट में, ए यूनिट वेक्टर, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो हम लिखते थे ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए क्रॉस बी। तो यहाँ पे ए बी सी यूनिट वेक्टर्स हैं, और इस लाइन पे आपने प्रूव कर दिया कि ए बी के भी परपेंडिकुलर है, ए सी के भी है। तो ए एक यूनिट वेक्टर है जो बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर। तो ए क्या होगा? उसका क्रॉस प्रोडक्ट अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। So right guys, this much was there for vectors miscellaneous. There are few questions, I know it's still there, but I had covered in earlier lectures, so that is it. So this one, actually you can use the shortcut once you have the concept clear, right? And please don't forget to subscribe to the channel, watch it, like it, share it, and also invite others and share it with maximum for the benefit of the others, right? That's it today guys for the vectors. Next I'll be coming out with 3D miscellaneous and we'll discuss that. Thank you, bye guys, stay safe.